हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईटी इंजीनियर करियर प्रोग्राम, जिसमें हमारा सबसे पहला कोर्स होगा सीसीएनए। तो हमारे आकाश ट्रेनर हमारे साथ हैं। हाय आकाश, हाउ आर यू? I'm good. सो आकाश, ओवर टू यू। आई एम जस्ट मेकिंग यू द होस्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट। Okay, thank you. So I think let me just start this session for today. So basically जो ये हमने एक आईटी इंजीनियर का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, so the program is like skills for everyone. ये एक प्रोग्राम रहेगा जिसमें जो कि लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और जो बेसिक्स आपको टू एंटर इनटू आईटी. तो shall I share the screen now? यस यस। Just a moment. Is it okay now? यस, इट्स क्लियर। Okay. Okay, so this program is like skills for everyone. So as we can understand with this tagline, skills for everyone, the skills which we are going to study here, it will be for everyone. So there is no prerequisite. इसके लिए like कोई prerequisite नहीं है कि it has to be from some background or some kind of beginner level experience, or you have to some kind of some knowledge you should have before going for this course. Okay, so skills for everyone will be having basically four modules. One part will be CCNA, other part MCSA, basic hardware part you will be learning in this course under MCSA. Then you will have Linux, and the fourth module will be the Azure part in this skill for everyone. I'll be taking the part of CCNA in this skills for everyone course. So moving forward, I'll just give the brief introduction about myself. My name is Akash. मुझे इस फील्ड इंडस्ट्री में 7+ years का एक्सपीरियंस है, एंड आई हैव वर्कड ऑन switches, routers of multi vendors in this 7 years of journey. So basically I worked on Juniper routers, Huawei routers, Cisco routers, and a Nokia routers also. And I have some 2-3 years experience, including in this 7 year of experience in BNG, and जो आपकी latest technologies हैं like FTTH, which I hope that everyone is using nowadays, fiber connection. It may be Geo fiber, it can be your Airtel fiber. So these kind of FTTH technologies which presently everyone is using. So that experience also I'm having. And then MNG PAN and some kind of access network technologies. And basically from last 1.5 or 2 years, I have been working on some proxy servers and firewall too. I hope my introduction part is clear to everybody. If it is okay, so that I can go ahead for the next slides. You can give some comments in chat, or you can say some reactions you can give it. Yeah, Akash. Okay. And one more thing, I just like to ask the audience: should I go for this session in English or or in Hindi? Because as I got the instruction that it will be a Hindi course, हिंदी बैच है पूरा, Hindi हिंदी में ही batch. आप रहे। So I'll go with Hindi only then. In somewhere I can switch to English also. Okay. So if anybody is having any doubt, they can raise their hands or they can ask me. So अब हम लोग next slides पे देखते हैं. Like we have this course, this skills for everyone. In this already मैंने आपको बताया कि हमारे 4 modules हैं इसमें. CCNA है, MCSA, Linux and Azure. So I'll be taking the CCNA part. So before going into the CCNA part, I would just like to inform you कि आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जो कोर्सेज नेटवर्किंग के, इट्स नॉट ओनली CCNA इज देयर, बट व्हाई एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर CCNA, दैट वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट. CCNA ही हम बेसिकली कोर्स क्यों करते हैं? मेजोरिटी में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी सर्टिफिकेशन है, CCNA की तरफ मेजोरिटी जो इंक्लिनेशन है, बिकॉज CCNA हैज अ मेजर डोमिनेंस इन दी ग्लोबल मार्केट एज वेल एज इन इंडिया टू. सो ग्लोबली आप देखेंगे तो सिस्को डिवाइसेस आर मोर प्रिडोमिनेंट यूज. पूरे इंडस्ट्री में आप देख लेंगे तो सिस्को के जो डिवाइसेस हैं, इट कैन बी राउटर्स, इट कैन बी स्विचेस, और जो भी इनके अदर डिवाइसेस हैं डाउन द लाइन, सिस्को एक मेजर डोमिनेंट प्लेयर है हमारा इंडस्ट्री में. टेलीकॉम इंडस्ट्री देख लीजिए आप, नेटवर्किंग इंडस्ट्री देख लीजिए, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज देखेंगे तो आप सिस्को का पार्ट. तो बेसिकली जो एक एंट्री लेवल कोर्स है, सिस्को इज प्रीडोमिनेंट. दैट्स वाई हम लोग जितना सुनते हैं कोर्सेज के बारे में, तो CCNA एक मेजर कोर्स, हम नाम बार बार सुनते हैं, फ्रीक्वेंटली सुनते हैं. We have other courses also, same in line with CCNA.
जैसे कि आपका CompTIA कोर्स होता है जो कि वेंडर न्यूट्रल रहता है, लाइक उसमें कोई वेंडर डिफाइन नहीं रहेगा कि आप इसी के कमांड्स को सीखेंगे या उसकी वर्किंग सीखेंगे कि पर्टिकुलर हुआवे का डिवाइस है तो कैसे वर्क करता है, आपका किसी और वेंडर का डिवाइस हो सकता है, नोकिया का हो सकता है डिवाइस, तो उसके बारे में भी आपको सिखाते हैं उस कोर्स में। बट CCNA इज प्योरली ऑन द सिस्को पार्ट, बिकॉज इट इज अ सिस्को डिवाइस एंड सिस्को कोर्स। सो बेसिकली इसमें हम सिस्को के ही जो भी ट्रबल शूटिंग करेंगे, नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे सिस्को डिवाइसेस में ही करेंगे मेजरली। देन वी हैव जूनिपर कोर्स आल्सो, बेसिक लेवल एंट्री लेवल एक जूनिपर में भी कोर्स आता है, जूनिपर कंडक्ट दैट कोर्स, उसमें सर्टिफिकेशन देता है। सो नाउ आवर फोकस विल बी ऑन CCNA में रहेगा हमारा को मेजर जो रहेगा 99% जो कोर्स में हम जो डिस्कशन करेंगे विल बी डिस्कसिंग ओनली ऑन सिस्को पार्ट। तो CCNA स्टैंड फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये एक बेसिक एंट्री लेवल का आपका कोर्स है जो आपको हेल्प करता है आपके नेक्स्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर यू आर गेटिंग इनटू द IT जॉब, कि आपको कैसे नेक्स्ट मूव करना है, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, बेसिक फाउंडेशन दिस कोर्स विल गिव यू CCNA। इट इज अ एंट्री लेवल कोर्स टू बिल्ड अ करियर इन द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग। इसके करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं हम ये देखना चाहते हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर आफ्टर डूइंग दिस बेसिक कोर्स ऑफ CCNA यू कैन गेट जॉब्स इन MNC कंपनीज एंड स्मॉल लेवल एंटरप्राइज कंपनीज ऑल्सो यू कैन गेट। सो उसमें क्या आपकी पोजिशंस हो सकती हैं, वी कैन सी हेयर इन दिस थर्ड पॉइंट, इट कैन बी अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, you can get job in data center locations, like मेजर जो कंटेंट्स हमारे जो डेटा सेंटर्स होते हैं वहां पे आपको नेटवर्क मॉनिटर करना होगा, नेटवर्क आपको सेफ गार्ड करना होगा, या फिर आपको बेसिक जो ट्रबल नेटवर्क को रनिंग रखने कंडीशन में जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी उस डेटा सेंटर में, दैट दोज थिंग्स यू विल टेक केयर एज अ बेसिक एंट्री लेवल जॉब। देन यू कैन गेट सम पोजीशंस आकाश, लाइक, आपकी एक ही स्क्रीन विजिबल है, राइट? आई थिंक यू कैन सी दिस वाई CCNA स्लाइड, राइट? नहीं, मेरे को सिर्फ आकाश स्किल्स फॉर फर्स्ट स्लाइड शो। कैन यू सी नाउ माय सेकंड स्क्रीन, सेकंड स्लाइड? यस, यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि लाइक कि हमारे को जॉब पोजीशंस कैसे मिल सकती हैं, कौन कौन सी पोजीशंस हमें एंट्री लेवल पे मिलती हैं। लाइक यू कैन गेट टेक्निकल सपोर्ट L1 L2 इंजीनियर, इफ़ यू गेट जॉब विथ ISPs के साथ को जॉब मिल सकती है, जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लाइक हमारे इंडिया में एयरटेल है, भारती हमारा, देन रिलायंस जियो है, BSNL है, वोडाफोन इंडिया है, आइडिया है। तो इसके नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स भी होते हैं जो ये पूरा नेटवर्क अपना मेंटेन करते हैं, देयर ऑल्सो यू कैन गेट अ जॉब एज अ एंट्री लेवल इंजीनियर इन दिस वन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड नहीं कि आपको ये डिग्री होनी चाहिए या ये ग्रेजुएशन आपको कोर्स किया हुआ होना चाहिए, एनी बडी कैन गो फॉर दिस CCNA सर्टिफिकेशन कोर्स। ओके, और नेटवर्किंग का रोल आप समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड इन अवर डिजिटलाइजेशन जितना हमारी अभी हो रहा है ग्लोबली आप देखेंगे, तो उस केस में दिस CCNA सर्टिफिकेशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑल्सो, कि हमारी डिजिटल थिंग्स हाउ देज आर वर्किंग, how we have to keep secure our data. So these are the some important points which we have to, हमें देखना पड़ता है कि लाइक हमारा नेटवर्क कैसे चल रहा है, हमारे जो नेटवर्क को हमें सिक्योरिटी है, जो हमारा डेटा है कस्टमर्स का, जो इन्फॉर्मेशन हैं वो हमें कैसे सिक्योर करनी है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ CCNA कोर्स। उसके बाद मैंने आपको बताया जूनिपर भी एक सर्टिफिकेशन देता है बेसिक लेवल पे, जूनिपर नेटवर्क सर्टिफाइड इंटरनेट एसोसिएट कोर्स इसको बोलते हैं। बट मेजरली जो डोमिनेंस है सिस्को का है, इसकी वजह से CCNA will be the course which will be opted by most of the people. Now moving on to the salary packages and jobs, आपको इस कोर्स को करने के बाद, and in this course Akash, I have a quick query. Sorry to interrupt. yeah please, ये जो CCA कोर्स होता है तो ये करने के बाद सर्टिफिकेट तो मिलता है ना आपके तरफ से, उसके बाद जो सिस्को का सर्टिफिकेट, मेन सर्टिफिकेट जो होता है वो करना जरूरी है क्या, मतलब सो इवन योर सर्टिफिकेट इज प्रेफरेबल? yeah our certificate will be preferable. See, you have to understand the thing is one certificate will be given by our side if you have that global certification, but what will happen if you want to get that global certification, then आपको पैसा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ओके, एंड इट इज लाइक अगर आपने पास किया वेल एंड गुड, यू विल गेट दैट सर्टिफिकेट, अदरवाइज योर मनी विल बी like waste if you won't pass that certification.
because it will be not like to give every time that course, because of the main concern is जो उसकी cost रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है, रफली अराउंड 20,000 और 28,000 के अराउंड ये वन टाइम आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. देन इफ यू क्लियर दैट एग्जाम तब आपको ये सर्टिफिकेशन मिल पाता है. बट द नॉलेज वाइज इफ यू सी, अगर आपको नॉलेज है एंड यू आर एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू, then obviously you will get the job. Hope my point is clear. Certification will give you add-on value. It's just like that. Okay, Okay. I got it. मगर ये जो मतलब ग्लोबल सर्टिफिकेट जो होता है, लेट्स से तो अगर हमने यूज कर लिए एक बार, तो एग्जाम एक ही बार अटेंड करना है कि मल्टीपल बार अटेंड कर Means सकते हैं? आपने एक बार फीस पे करी, then only you will get one chance. It's not like you वन can चांस. Yes. If you pass that exam, well and good. If you are not able to make it through, then it is like your money is gone now. So that's why. अनलाइक अदर सर्टिफिकेट्स, अदर सर्टिफिकेशन, जब भी हम खरीदते हैं ना, मतलब एटलीस्ट विल हैव अराउंड 3 चांसेस, राइट? तो फर्स्ट चांस जो फेल हो गया तो मतलब दूसरे चांस, तीसरे चांस वैसे होता है. I don't think कि तब ये अगर ग्लोबल CCA में. सर्टिफिकेशन के साथ ऐसा कुछ रहता है. ओके. Global certifications, maybe some institutes or some companies can have some kind of tie-ups with those MNCs or those vendors. That part I'm not pretty much sure, but जहां तक मुझे पता है कि वो वन टाइम ही रहता है आपका. So that's why you what I suggest कि आप नॉलेज पे ध्यान दें. Certification is just a piece of paper करेक्ट. which is based on your knowledge, which you have ultimately achieved. If you एग्जाम देके क्वालिफाई कर जाते हो उस एग्जाम को, if you pass that exam and criteria fulfill करके, then you have that certification to show it. But ultimately इंटरव्यू में तो आप क्वेश्चन ही पूछेगा ना आपसे. If करेक्ट. you are able to answer those questions, obviously he will be impressed and he will give you the job. करेक्ट. तो मगर ये जब भी मतलब कंपनी में ज्वाइन होते हैं ना, मतलब दे स्टिल आस्क फॉर सर्टिफिकेट, राइट? So that's why I was wondering. No, I don't find it like they will ask for it. It's not a mandatory part. That's what I'm telling. वो आपका एक add-on value है. Okay. See, you have certificate. Okay, you think about one scenario. You have certificate, but you are not able to answer the questions what the interviewer is asking. Then what is the use of that certificate? That's true. Yeah, Correct ना? I can understand. Yeah. Okay, hope I'm clear now. Yes, very much. ठीक Thank है. you. तो अभी हम देखते हैं कि लाइक अब हमें सर्टिफिकेशन कर लिया, एंड द वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स इज इट इज नॉट ओनली, ये सिर्फ प्योरली CCNA कोर्स नहीं रहेगा. इट इज स्किल्स फॉर एवरीवन में हम लोग और कोर्सेज को भी मॉड्यूल में इंक्लूड किया हुआ, लाइक MCSA, Linux, Azure. So it will be a huge, like, full package for you. Not only like एक single, because आज का जो मार्केट सिनेरियो है, it is not like they are not asking, वो सिर्फ एक स्किल पे नहीं फोकस करते हैं. If person is having उस पे multiple skills हैं, so they will hire that person or they will have that more priority for that person, right? So now coming to salary packages. यूजुअली जो मार्केट ट्रेंड है उसके हिसाब से मिनिमम 4 LPA to 6 LPA यू कैन एक्सपेक्ट बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड अदर थिंग्स. लाइक सम कंपनीज कैन हैव क्राइटेरिया लाइक उनका ग्रेजुएशन का परसेंटेज. Some companies, it's not like everybody, but most of the companies won't ask for those things. It is only purely based on your knowledge for that particular profile. जो आप प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रोफाइल के लिए आपकी क्या नॉलेज है, क्या आपको उसमें experience है, those things only they will ask. Okay. Other things will be like your communication skills, marks, etc. And opportunity wise, मैं आपको बता देता हूँ कि as a network engineer you can get, आपको सर्विस बेस्ड कंपनी along with प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दोनों में ही आपके लिए ऑप्शंस रहते हैं आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स. ओके. सो सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन्फोसिस है, TCS है, विप्रो है. These are service based companies. They will get the project from some client and they will depute the person over there. तो उसमें आपको जॉब मिल सकती है सर्विस बेस्ड कंपनी में. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक अगर आपको डायरेक्टली सिस्को हायरिंग करता है जैसे एंट्री लेवल पे, तो सिस्को में भी जॉब मिल सकती है. जूनिपर, VMware, पालो अल्टो, ये प्रोडक्ट बेस है हमारे. तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी ऑप्शन रहता है कैंडिडेट्स के पास कि दे कैन गेट अ जॉब. ओके. एंड थर्ड ऑप्शन इज लाइक ISPs. स्मॉल लेवल ISPs ऑल्सो भी हो सकते हैं हमारे, बड़े लेवल के ISPs भी हो सकते हैं. यूजुअली ISPs आर
मेजरली बड़े लेवल पे आईएसपीज होते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, तो वहाँ पे नॉक्स चलते हैं उनके, उस नॉक में भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है एज अ एंट्री लेवल L1 इंजीनियर की जॉब मिलती है, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की जॉब भी मिलने के चांसेस रहते हैं इस कोर्स के करने के बाद। ओके ओके, ये हमारा जो सेट कोर्स रहेगा स्किल्स फॉर एवरीवन, इसमें बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, 4 हम लोग मॉड्यूल्स हैं, CCNA, MCSA, Azure एंड लिनक्स। CCNA आई विल बी कवरिंग अंडर दिस स्किल्स फॉर एवरीवन। इस CCNA में हम लोग क्या कोर्स में क्या पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं आने वाले फुल जितना भी ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है। ओके, दीज आर दी टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर। ये एक ब्रीफ आइडिया है, हम इसको डिटेल में देखेंगे, लाइक हमारे पास कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या क्या होती हैं, हाउ द नेटवर्क विल बी कनेक्टेड, व्हाट इज OSI मॉडल क्या होता है, TCP IP मॉडल क्या है, IP एड्रेसिंग क्या होती हैं, सब नेटिंग क्या होता है, सुपर नेटिंग क्या होता है। दीज आर दी कोर्सेज विच वी आर गोइंग टू कवर ड्यूरिंग दिस कोर्स। ओके, राउटर्स देखेंगे, राउटर्स डिवाइसेस क्या हैं हमारे, स्विचेस कैसे काम करते हैं, नेटिंग क्या होती है। सो आई होप कुछ इसमें से सम पार्टिसिपेंट माइट बी फेमिलियर, कुछ लोगों को पता होगा कि ये जो भी मैंने वो यहाँ पे मेंशन किए हुए टॉपिक्स उनके बारे में आइडिया होगा। इफ एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया अबाउट दिस, कैन दे कैन स्पीक। गुलशन, गुलशन आर यू देयर? नवीन, डू यू हैव एनी आइडिया? इसमें कुछ पॉइंट्स में किसी को कुछ आइडिया है कि क्या है, ये पहले सुने हैं कभी ये टॉप Yeah, नेम? I've heard about this. ओके, आपने सुने हैं, फाइन फाइन। Yeah, yeah. सो दिस But सुपर there one नेटिंग। one query. इसमें जो मतलब टॉपिक जो भी है तो वो सिस्को का ग्लोबली सर्टिफिकेट जो होता है तो वही हाँ, सेम सेम टॉपिक से यस, होते जो हैं आपका रिलेटेड। सिस्को का जो करिकुलम रहता है, जो कोर्स रहता है CCNA का, वो ओके पूरा कवर होगा। इसमें मे भी कुछ पॉइंट छूट गए होंगे, बट दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर दिस पर्पस ओनली, दिस इज प्रिपेयर्ड दिस PPT। ओके, इफ यू पूरा कोर्स जब हम देखेंगे, जो ओके हमारा ये IT इंजीनियर करियर प्रोग्राम का जो कोर्स है, उसमें CCNA जो मॉड्यूल है, उसमें ग्लोबल जो CCNA का जो सिलेबस रहेगा, वी विल कवर दैट 100% एज इट इज इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो डोंट वरी अबाउट दोस पार्ट, मे बी सम पॉइंट्स कुछ मिस हो गए होंगे इसमें, बट आई मेक श्योर कि वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ओके, या क्लियर या राइट। दीज पॉइंट्स, दीज आर द मेजर टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू, हम लोग जो कवर करेंगे पूरे ड्यूरेशन में कोर्स के। ठीक है, अब चलो एक बार हम बेसिक्स आइडिया ले लेते हैं। जैसे कि आज ये एक इंट्रोडक्शन सेशन टाइप का ही है, सो इट्स नॉट लाइक फुल कोर्स, फुल लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक फॉर दिस फर्स्ट डे। जस्ट हम बेसिक एक आइडिया देख लेते हैं कि लाइक ये नेटवर्क क्या होता है हमारा। ठीक है, अब जैसे मैंने आकाश, वन मोर क्वेरी, ये जो सीसीएनए कोर्स होता है ना, कितना हम्म, कितना दिन चलता है ये? सो इज इट 2 months, 3 months? हाउ लॉन्ग इट्स गोना हैपन? आई होप दैट वो कोर्स के बारे में आपको बताया गया होगा, लाइक ड्यूरेशन कितना रहेगा कोर्स का बाय आवर मैनेजमेंट। Actually, Naveen, the या duration will be on, if we go with the weekdays batch, will be 2 months, 2 महीने का कोर्स रहेगा। और ओके आपके जो भी काउंसलर होंगे, मतलब आप कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोर्स एंड ड्यूरेशन, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक, डन। ओके, थैंक यू। या प्लीज आकाश कैरी। ओके, थैंक यू। सो अभी जैसे बेसिकली हम नेटवर्क को समझ लेते हैं, नेटवर्क क्या होता है। लाइक अगर आप एक बेसिक एग्जांपल से समझेंगे नेटवर्क, जैसे एक आपके फ्रेंड सर्किल में एक नेटवर्क होता है, वो उसको भी एक नेटवर्क कहा जाता है। जो हमारा एक सर्कल होता है, हमारे एज अ ह्यूमन, हमारा जो एक सर्कल है उसको एक नेटवर्क कहते हैं। ओके, सो सेम वे में लाइक कंप्यूटर्स में भी एक नेटवर्क होता है, एक हमारे नेटवर्किंग में भी एक नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, वो नेटवर्क क्या है, उसमें अलग अलग तरह के डिवाइसेस हो सकते हैं। आपका एक कंप्यूटर हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपका एक प्रिंटर हो सकता है, आपका एक प्ले स्टेशन हो सकता है। सो ये सारे डिवाइसेस एक किसी ना किसी दूसरे नेटवर्क डिवाइस के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सो इसी को हम नेटवर्क बोलते हैं। सो दीज आर ऑल डिवाइसेस विच इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। दे मे बी एक जगह पे हो सकते हैं, जोग्राफिकली फिजिकली एक ही रूम के अंदर हो सकते हैं, और मे बी दूसरी बिल्डिंग में हो सकते हैं, दूसरी सिटी में हो सकते हैं, दूसरी कंट्री में हो सकते हैं, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग वाया डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। वो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे हमारे हब हो सकता है,
स्विच हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं। तो इनकी हेल्प से, इन नेटवर्क डिवाइसेस की हेल्प से वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। दे कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, दे कैन एक्सचेंज रिसोर्सेज विद ईच अदर। तो दिस वे इट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। अभी हम इस पिक्चर में जैसे समझने की कोशिश करते हैं, सपोज आप ये सोचिए कि आपके पास एक प्रिंटर है विच यू वांट टू यूज इन योर ऑफिस। अब एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास अगर एक ऑफिस में 4 या 5 एम्प्लॉयज वर्किंग है, तो हम 4-5 एम्प्लॉयज को इंडिविजुअल एक उनका एक एक प्रिंटर असाइन कर दें, विच विल बी एडिंग कॉस्ट टू अवर पॉकेट। हमारे को एक्स्ट्रा, हर एक 4 एम्प्लॉय हैं, कल के दिन एक और एम्प्लॉय एक्स्ट्रा ऐड होगा कंपनी में, तो हमें उसको एक और प्रिंटर देना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट क्या होता है कंसेप्ट कि आप उस प्रिंटर को नेटवर्क में शेयर कर दें, सो दैट क्या होगा, जब भी किसी एम्प्लॉय को यूज करना है वो प्रिंटर, ही विल यूज इट। इट इज नॉट लाइक कि एवरी टाइम सभी लोग यूज कर रहे हैं उस प्रिंटर को, कुछ प्रिंट कमांड दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस प्रिंटर का यूज, रिसोर्स का यूज कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। तो उस वे में क्या होता है कि हम उसको ऑप्टिमल वे में यूज कर पाते हैं प्रिंटर को। हमने कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट हमने अपना सेव किया उसमें, रिसोर्सेज, उसका मैनेजमेंट हमारा रिसोर्स का इजी हो जाएगा। हमें 4 प्रिंटर के बदले एक सिंगल प्रिंटर को मैनेज करना है, वो हमने उसको नेटवर्क में शेयर कर दिया, एंड एवरीवन कैन यूज इट नाउ। सो ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स लाइक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जिसको हम आगे समझेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या है। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके बेसिस पे दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपका जो कंप्यूटर है, मे बी ही वांट टू गिव अ प्रिंट कमांड, तो ये some protocols it will use, and based on that those protocols it is able to use that resource in his office. Same way other users also, or other employees can also use that resource. So this is a basic idea of a network. So now we can see what is a protocol. As I was मैं बता रहा था जैसे आपको कि ये आपस में बात करते हैं using some kind of protocols. Protocols क्या होते हैं? आकाश, बिफोर यू प्रोसीड, मेरा एक क्वेश्चन है. सो आई गेट टू हियर दैट नेटवर्क एंड नेटवर्किंग बोथ आर डिफरेंट करके, मतलब इज इट ट्रू और हाउ एग्जैक्ट इट इज? Network and नेटवर्क एंड नेटवर्किंग. are two different, you are telling, right? हाँ, करेक्ट करेक्ट. हाँ, नेटवर्क क्या है? जो आपके नेटवर्किंग जो डिवाइसेस है ना, उन ओके. सब का जो कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। नेटवर्किंग डिवाइसेस जो प्रोटोकॉल्स को समझ पाते हैं, जो आईपी एड्रेस को समझ पाते हैं, जो मैक एड्रेस को समझ पाते हैं, ऐसे वो डिवाइसेस का जो नेट कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। वो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उनको हम एक साथ एक किसी जरिए से, लाइक मे बी फिजिकल मीडिया कैन बी देयर, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस विच कैन एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये है उसका बेसिकली जो आप पूछना चाह रहे हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस, उनको मिला के जो बनता है वो बनता है नेटवर्क। ओके. गॉट इट? नहीं, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है. हाँ, नेटवर्किंग नेटवर्किंग डिवाइसेस यही ना, मतलब ये हमारा देखो, लैपटॉप जैसे होगा, आप ये घर मोबाइल में होगा, प्रिंटर. वाईफाई यूज करते हो, करेक्ट करेक्ट यू हैव, आपके पास घर में टीवी होगा, एक आपके करेक्ट. पास मोबाइल फोन होगा, लैपटॉप होगा, ये आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। ओके. अब आपस में जो आप यूज कर रहे हो, दैट इज व्हाट यू आर, क्या यूज कर रहे हो घर पे? इंटरनेट यूज कर रहे हो, सपोज एक सर्विस यूज कर रहे हो, और सपोज कुछ दैट्स कंटेंट, नेटवर्क. दैट इज योर नेटवर्क नाउ, या दैट इज योर लोकल नेटवर्क नाउ। अब वो आपके प्रमाइस के अंदर लिमिटेड है, आपके एक रूम के अंदर लिमिटेड है, या आपकी एक बिल्डिंग के अंदर लिमिटेड है। सो दैट्स वाई जो कंसेप्ट आते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ओके. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मान, LAN, WAN, ये जो आप नेटवर्क करेक्ट सुने होंगे आपने जो वर्ड्स, ये करेक्ट. यहीं से आते हैं। जो नेटवर्किंग डिवाइसेस थे आपके, जो आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पा रहे थे, जैसा कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताया कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इसको आप एक बार देख लो, देन विल कम बैक टू योर क्वेश्चन ऑल्सो, वी विल ओके रिलेट। ओके. यस, श्योर. जैसे कि हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हो, मैं आपकी लैंग्वेज समझ पा रहा हूँ, देन ओनली वी आर एबल टू कम्युनिकेट, राइट? या करेक्ट. तो या. ये एक ह्यूमन, आप उस पर बोल सकते हैं कि हाँ, यू आर अंडरस्टैंड। अगर आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलोगे तो वो मेरे को समझ नहीं आएगी, आई नीड सम ट्रांसलेटर, राइट, इसमें। तो सेम वे में जो डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, दे विल अंडरस्टैंड सम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स
और वो प्रोटोकॉल्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं कि हमने कैसे डेटा को ट्रांसमिट करना है एक दूसरे को, कैसे हमने एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है और उसको फिर उस इंफॉर्मेशन को हमने यूज करना है कि हमने उस इंफॉर्मेशन का करना क्या है। सपोज मैं कुछ यहाँ से बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस वेबिनार सेशन, राइट। तो अगर आप मेरी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाओगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने इन्फॉर्मेशन कन्वे किया, आपने उस इन्फॉर्मेशन को लिया एंड आपने समझने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है, राइट। तो सेम वे में प्रोटोकॉल्स बात करते हैं आपस में, तो वो जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं दे विल कम्युनिकेट बेस्ड ऑन सम प्रोटोकॉल्स, एंड उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन हो रहा है नेटवर्किंग डिवाइसेस में वो एक नेटवर्क कहला जाता है। अब आपके क्वेश्चन में आते हैं। सपोज आपका, आप घर पे टीवी देख रहे हो, आप कोई कंटेंट देख रहे हो या मैच देख रहे हो, तो दैट कंटेंट आपको जो मिल रहा है मैच आपको ओवर इंटरनेट मिल रहा है, राइट। करेक्ट। हाँ। तो वो आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम प्रोटोकॉल जो कि सेट ऑफ रूल्स हैं, और उससे क्या मिल रहा है, उनका एक नेटवर्क बन गया, उस नेटवर्क में वो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है। ओके। उसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होंगे, आपका लैपटॉप होगा नेटवर्किंग डिवाइस, आपका टीवी नेटवर्किंग डिवाइस होगा, हम्म। का राउटर जो आपको जो इंटरनेट जिसका भी आपने लिया है उसका भी जो मॉडम रहता है जिसको मॉडम बोलते हो, वो आपका नेटवर्किंग डिवाइस है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो ओके। जो आपके घर का नेटवर्क है वो एक स्मॉल बिल्डिंग या एक रूम के अंदर है, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं या प्राइवेट एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं, छोटे से करेक्ट। एक ज्योग्राफिकली छोटे से एरिया में। अब इसी को आप बड़ा नेटवर्क समझ के सोचो कि आपकी एक कंपनी है जो दिल्ली में है, दूसरी कंपनी का ऑफिस आपका गुड़गांव में है या फिर पुणे में है। अब ये जो जो लोग जब बात करेंगे तो इट विल बी अ वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि है वही, वो भी कंसेप्ट यहाँ छोटे स्केल पे था वहां बड़े स्केल पे हो गया तो उसको वाइड एरिया बोल दिया। No, but whenever it is in different cities, we call it as metropolitan, correct? नो, इफ इट इज इन सेम सिटी इट इज, यू कॉल इट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक्चुअली टेक्निकली कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इट इज नॉट डिस्टेंस वाइज की 1000 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर के आगे वैन हो जाएगा या उससे कम का जो डिस्टेंस होगा उसको मैन के मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपका एक छोटा सा नेटवर्क है जो विद इन एक सेम बिल्डिंग के अंदर ही स्टार्ट होके खत्म हो जाता है, लाइक आपका घर है, जो घर के अंदर वाईफाई की रेंज आपको दूसरी बिल्डिंग में नहीं आएगी ना, आपके घर का जो वाईफाई है उसकी रेंज आपको दूसरी बिल्डिंग में नहीं आएगी ना। आप कैंपस से बाहर निकल जाओगे, अपार्टमेंट से बाहर निकलोगे, दूसरे अपार्टमेंट में नहीं आती उसकी रेंज, राइट। वो आपका लोकल एरिया Correct. नेटवर्क है। अगर वहीं वैन नेटवर्क्स होंगे तो वो थ्रू सम मीडिया दे विल बी कनेक्टेड, और वो फिर कम्युनिकेट कर पाते हैं आपस में। जैसे आपका एक ऑफिस अगर सेम सिटी में है तो इट कैन बी अ मैन नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक Okay. बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क है, 2-3 फ्लोर में आपका नेटवर्क, आपका एक फ्लोर में कोई एक टीम बैठती है, दूसरे फ्लोर में दूसरी टीम बैठती है, तो इसको आप लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हो, कहते हो। और अगर एक ही रूम के अंदर बिल्डिंग है तो वो आपका प्राइवेट एरिया नेटवर्क है, आपके प्राइवेटली एक रूम के अंदर स्टेबल है वो, और वहीं पर ही खत्म हो जाता है, उतने एरिया के अंदर ही वो नेटवर्क है, तो दैट इज अ प्राइवेट एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कब आता है कि आपका एक ऑफिस गुड़गांव और एक ऑफिस सपोज, इट कैन बी इन सेम गुड़गांव ऑल्सो, इट कैन बी इन पुणे ऑल्सो, इट इज नॉट, वो प्री डिफाइंड कुछ डेफिनेशंस नहीं है ऐसे कि अगर एक ही सिटी के अंदर है तो उसको मान बोलेंगे या एक ही सिटी से बाहर हो जाएंगे तो उसको वैन बोलेंगे। यू कैन से कि अगर सेम सिटी में भी है तो वो भी एक वैन नेटवर्क हो सकता है। ओके। Okay. But what would be the criteria? For example, अभी जो LAN जब बोलते हैं तो उसका जो रेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ही बोलो तो हाँ, डिस्टेंस कितना होता है? सो जब वे LAN होता है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है? सो यूजुअली हम लोग लैन केबल, आप देखो लैन केबल आपके पास 100 मीटर मैक्स टू मैक्स 50 मीटर का नेटवर्क होता है, एक फ्लोर ओके। से दूसरे फ्लोर या दूसरे फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर, दैट अप टू दैट करेक्ट। एक्सटेंड ओनली यू कैन एक्सटेंड दैट लैन। होता क्या है कि अगर आप उससे ज्यादा उसको एक्सटेंड करोगे तो सिग्नल की जो क्वालिटी है दैट विल गेट डिग्रेड, तो आपको ओके। सिग्नल प्रॉपर नहीं आता है। ओके, यू ओके। कैन, उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है। तभी आप जब आप देखोगे कि ये कोई कोई ऑफिस में जब कोई नेटवर्क बनता है तो लोकल जो भी कनेक्टिविटी होती है वो लैन के थ्रू होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उनके बीच में, लैन नेट जिसको हम लैन बोलते हैं, लैन केबल, इथरनेट केबल जो बोलते हैं आप लोग, कैट 5 कैट 6 कैट 5 भी जो केबल्स हैं, ये आपको लोकल एक ही प्रोमाइस के अंदर अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम आती है। व्हेन यू गो फॉर वैन नेटवर्क्स, अगर एक ऑफिस गुड़गांव में है, दूसरा ऑफिस दिल्ली में है या कहीं और लोकेशन पे जयपुर में है, तो दैट कनेक्टिविटी विल ऑलवेज बी वैन
एंड इट विल बी ऑन फाइबर मीडिया, क्योंकि फाइबर मीडिया में क्या होता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि सिग्नल आपका लाइट की फॉर्म में जाता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है फिजिकल, आप जब कनेक्टिविटी आप जो कह रहे हो करने के लिए कि डिस्टेंस वाइज, इवन ओके। दो आप 1 किलोमीटर में भी फाइबर केबल यूज कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट 1 किलोमीटर यू कैन नॉट पुट अ लैन केबल। इतनी लंबी लैन केबल कैसे लेके जाओगे, नहीं लेके जा सकते ना कनेक्टिविटी। करेक्ट करेक्ट। सो प्री डिफाइंड कुछ नहीं है डिस्टेंस वाइज कि इतने डिस्टेंस पे ये नेटवर्क बोलेंगे, इतने डिस्टेंस पे ये यूज करेंगे, बट एज अ स्टैंडर्ड अगर सेम कोलोकेटेड बिल्डिंग है तो वी विल प्रेफर लैंड। लैन कनेक्टिविटी। ठीक है। ओके। सो तो मैन एंड वैन कैन बी कंसिडर्ड सेम राइट, तो यस, ये। यस यस कर सकते हैं, कर सकते, देयर इज नॉट अ स्ट्रिक्ट कुछ ऐसा कुछ concept wise it is, there is no difference in that one. ओके Okay. क्लियर या। Okay. So अभी क्या है नेक्स्ट, अगर हम लोग जब नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे तो हम लोग OSI मॉडल पढ़ेंगे इसमें। बेसिकली OSI मॉडल क्या होता है, TCP/IP मॉडल क्या होता है, IP एड्रेसिंग क्या होती है, मैक एड्रेसिंग क्या होती है। तो मैं उसका एक बेसिक आइडिया देता हूँ। OSI मॉडल क्या था, जो बेसिकली हमने जब अपने नेटवर्क को समझने के लिए क्या किया गया था कि एक 7 लेयर का मॉडल बनाया गया, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हो कि नेटवर्क मतलब हो क्या रहा है एक्चुअल में। हम लोग अगर लेमन लैंग्वेज में समझे कि यार नेटवर्किंग में हो क्या रहा है, पहले हमने फिजिकल एक केबल कनेक्ट करी। ओके। अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, एक 7 लेयर मॉडल था जिसमें हमने सबसे पहली जो लेयर है, अगर हम बॉटम टू टॉप अप्रोच को देखते हैं तो बॉटम में जो लेयर 1 होती है फिजिकल लेयर बोला जाता है उसको। फिजिकल लेयर का मतलब फिजिकल मीडिया कैसे कनेक्टेड है आपका दो डिवाइसेस के बीच में। इट कैन बी वायरलेस मीडिया। फिजिकल मीडिया का मतलब हमेशा ये नहीं रहेगा कि वो फिजिकली कनेक्टेड होंगे, इट कैन बी वायरलेस ऑल्सो। सेकेंड, इट कैन बी थ्रू लैन के इथरनेट इलेक्ट्रिकल केबल्स, इट कैन बी ऑप्टिकल केबल। ये हमारा फिजिकल मीडिया है, कैसे दो डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब दो डिवाइस कनेक्ट हुए, दो डिवाइस कनेक्ट होने के बाद कुछ डेटा इंफॉर्मेशन शेयर होती है, शेयर होते ही वो सेकंड लेयर पे जाती है, दैट इज कॉल्ड अ डेटा लिंक लेयर। ओके। जस्ट अ मिनट में आपको, अगर मेरे पास डेटा है तो आई कैन शेयर यू दैट वन ऑल्सो। आई जस्ट वांटेड टू आस्क, ये अभी सेशन हमें और कंटिन्यू करना है, लाइक हमें शुड आई गो नेक्स्ट फॉर दिस, या अभी जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कंटिन्यू करना है? अगर मुझे कुछ कंफर्म कर देगा तो आई कैन। I, I think introduction will be enough. Like आप डायरेक्ट पढ़ाना चालू करें तो वहां से चीज बेटर समझ में आएगी। नहीं नहीं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि आज जस्ट एक बेसिक आइडिया वो इंट्रोडक्शन पार्ट लेना था। एज हाँ पार्टिसिपेंट्स आर ऑल्सो लेस, मुझे लगता है कि शायद पार्टिसिपेंट हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा लोग होंगे। हाँ, तो अभी इंट्रोडक्शन काफी है। तो अगर मुझे ट्रेनर बता देंगे कि क्या करना है नेक्स्ट इसमें, तो आई उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूँ इसमें, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी कम है इसमें स्ट्रेंथ अभी। तो अगर इतने ही पार्टिसिपेंट्स रहने वाले हैं तो ओके, नो प्रॉब्लम फॉर मी, आई कैन गो अहेड। क्योंकि कुछ लोग अभी लेट ज्वाइन हुए हैं इसमें, मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि, तो शायद इन लोग को भी बेसिक इंट्रोडक्शन भी इनका मिस हो गया होगा, या आई होप कि इनको पहले से पता है, या इफ दे वांट वी कैन कंटिन्यू लाइक रिपीट दैट इंट्रोडक्शन पार्ट वंस। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप आगे कंटिन्यू कर सकते अच्छा, तो मैं अभी टॉपिक्स पे कंटिन्यू कर लूँ? हो। जी जी। ओके फाइन, जस्ट अ मिनट, क्योंकि मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ही प्रिपेयर किया है, जस्ट लेट मी गो थ्रू दैट। ओके, आई होप कि सब लोग ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे मेरी। कोई मुझे बताएगा कि ये स्क्रीन या मेरी इट्स विजिबल? विजिबल। आप या थोड़ी स्क्रीन विजिबल। बड़ी कर दो। ओके, जस्ट थैंक यू। ओके, ठीक है। जैसे कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बता रहा था कि हम बेसिकली CCNA कोर्स ही क्यों करते हैं, इवन दो वी हैव अदर कोर्सेज आल्सो, जैसे कॉम्पटिया का कोर्स है, जूनिपर के कोर्सेज हैं। क्योंकि ये आप देखोगे तो ये इतना जो हमारा मार्केट कैप्चर है, जो वो सिस्को कैप्चर करता है पूरी इंडस्ट्री में, इसीलिए हम प्रीडोमिनेंटली CCNA सर्टिफिकेशन की तरफ ही हमारा मेन इंक्लिनेशन रहता है कि हम लोग CCNA को प्रेफर करते हैं। क्योंकि ये हमारे होता क्या है कि ये CCNA सर्टिफिकेशन करने के बाद जो भी हम कमांड सीखते हैं, जो भी इस कोर्स के ड्यूरेशन में हमने जो भी कमांड्स, ट्रबल शूटिंग, जो भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हम सीखते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि मार्केट में
किसी कंपनी में जाओगे तो सिस्को के ही डिवाइसेस मेजोरिटी में है, तो आपके लिए इजी रहता है उस चीज़ को फॉलो वहाँ पे करना। लाइक आप कॉन्फ़िगरेशन में कोई इश्यूज हैं तो आपको समझ में आता है कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन है, क्या कमांड चलेंगी, वो सब कुछ। इसलिए हम लोग CCNA को बेसिकली करते हैं। नेटवर्क जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो इंटरकनेक्शन होता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस का, लाइक हमारे स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, सर्वर्स, दिस काइंड ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में जो कनेक्शन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। एंड दे कैन बी कनेक्टेड वाया वायर्ड मीडिया और अ वायरलेस मीडिया, सो दैट बेस्ड ऑन सम प्रोटोकॉल्स वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और जो भी रिसोर्सेज हैं उस नेटवर्क में उनको यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, तो दीज आर बेसिकली हमारे जो कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क में क्या क्या होते हैं। रिपीटर होता है, ब्रिज होता है, स्विच होते हैं, राउटर्स होते हैं, एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, पीओई स्विचेस एंड सर्वर्स। अब हम देखते हैं कि रिपीटर्स क्या होते हैं। किसी को आइडिया है कि ये रिपीटर्स, किसने सुना है पहले कि क्या होते हैं रिपीटर्स? एनीवन? कोई चाहे चाह सक बताना चाहता है तो बता सकता है कि रिपीटर्स किसी को पता है तो, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू। Yeah, I heard about it. ओके, तो रिपीटर्स बेसिकली क्या है, ये लेयर 1 पे काम करता है। अगर कोई आपका सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको ट्रांसमिट करना है तो होता क्या है कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है, और उस सिग्नल वीक होने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली रिसीव नहीं हो पाती है फार एंड पे जो आपका डेस्टिनेशन है। तो हम बीच में रिपीटर्स लगाते हैं तो ताकि वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके, सिग्नल को बूस्ट कर सके, फिर से वो ओरिजिनल सिग्नल की फॉर्म में आए, और अगेन वी कैन ट्रांसमिट इट फर्दर, उससे आगे फिर हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब लेयर आप ये देखेंगे तो रिपीटर्स बहुत रेयरली कहीं भी यूज नहीं होते हैं एक्चुअल में। अब इंस्टेड ऑफ लाइक CM, आप अगर ये आप देखेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन में वहां पे रिपीटर्स का यूज अभी भी होता है, सिग्नल बूस्टर जिसको आप बोलते हैं, वहां पे रिपीटर्स को हम यूज करते हैं। बट एज अ पार्ट ऑफ दिस करिकुलम CCNA कोर्सेज के अंदर अभी हम लोग रिपीटर्स कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं। ब्रिज, ब्रिज क्या होता है? एक लेयर 2 डिवाइस होता है। ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। इसको इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है आपके मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये मैक एड्रेस क्या है और किसका मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस होता क्या है? सबसे पहले तो, अब जब मैक एड्रेस की बात आई है कि ब्रिज जो है मैक एड्रेस को समझता है, तो मैक एड्रेस क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा कि आपके लैपटॉप पे एक इथरनेट पोर्ट होता है, लैपटॉप पे जहाँ पे आप लोग लैन केबल कनेक्ट करते हैं पुराने लैपटॉप्स पे। आई होप कि लोगों ने देखा होगा वो जो अडेप्टर होता है, जो कनेक्टर होता है, जिसको हम RJ45 बोलते हैं, जिस पोर्ट पे हम, जिस पॉइंट पे हम उसको कनेक्ट करते हैं लैपटॉप में, दैट इज कॉल्ड अ ईथरनेट कार्ड और NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में ही ये मैक एड्रेस इनबिल्ट होता है, उसी में फिक्स होता है, वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो ये ब्रिज जो होता है उस मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड कर पाता है कि ये क्या है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये इसमें सिर्फ 2 ही पोर्ट्स होते हैं। मतलब अगर आपका कोई लार्ज एक सेटअप है, आपका कंपनी का, आपके ऑफिस में लार्ज सेटअप है, नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हैं, तो आप ब्रिज को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यू कैन कनेक्ट ओनली टू टू यूजर्स टू दिस ब्रिज। तो इसका ही जो नेक्स्ट वर्जन है उसको बोलते हैं स्विच। स्विच इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ ब्रिज विच हैज मल्टी मोर देन 2 पोर्ट्स। तो ये स्विच एक वो डिवाइस है जिसमें इसकी वर्किंग कैप जो है वो सेम एज ब्रिज है, बट इसमें पोर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आप बहुत सारे अपने सिस्टम्स कनेक्ट कर सकते हो। एंड यूजर जो अपने लैपटॉप्स को, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहता है, वो कनेक्ट कर सकता है इस स्विच में और आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। ये है इसका स्विच की फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट इज आवर राउटर। ये एक आकाश, वन क्वेरी है, सॉरी। हाँ, ये रिपीटर एंड ब्रिज के बीच में मतलब विच वन डू यू सजेस्ट इफ इन केस, अगर अगर होम होम पर्पस में यूज करना है, नहीं तो कंपनी में यूज करना है, तो विच वन डू वी प्रेफर? देखिए कंपनी में आपको अगर यूज करना है तो आपको स्विच ही यूज करना है। आजकल ब्रिज आते नहीं है, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आपकी एक कंपनी है, उसमें अगर आज प्रेजेंट में 2 एम्प्लॉय हैं, तो यू कैन मेक अ यूज ऑफ, आप ब्रिज को यूज कर सकते हो। बट जरूरी तो नहीं है कि आपकी कंपनी में 2 ही एम्प्लॉय रह जाएंगे, आपको अपनी कंपनी ग्रो करनी है ना। करेक्ट। आज आप एक ब्रिज खरीद लेते हो, डिवाइस जो भी आपका जितना भी अमाउंट का ब्रिज होगा, क्या आप नेक्स्ट ईयर इतना अफोर्ड कर सकते हो कि मैं ब्रिज को स्क्रैप कर दूं और मैं स्विच खरीद लूं? इट विल बी अ लॉस फॉर यू, राइट?
तो But एज अ there can be a possibility that I'll install this repeater and connect the user from the repeater. रिपीटर में तो इंटेलिजेंस ही नहीं है ना। देखो रिपीटर तो वैसे ही आप मार्कआउट कर सकते हो कि वो उसमें इंटेलिजेंस ही नहीं है, वो मैक एड्रेस को समझता ही नहीं है, वो लेयर 1 कनेक्टिविटी है, जस्ट एक फिजिकल कनेक्टिविटी, आप एक्सटेंड कर रहे हो अपनी कनेक्टिविटी को, तो उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। अभी हम इंटेलिजेंस का मतलब हम आगे समझेंगे कि ये इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। अगर आप ये सोचो, अगर मैं एक अपने रिपीटर से, सॉरी स्विच से, अगर मैं एक अपने स्विच में, मेरे 10 पोर्ट स्विच है सपोज, अगर मैं उसमें 10 यूजर्स कनेक्ट करता हूँ, अगर मेरे एम्प्लॉय, मेरे 10 ऑफिस में 10 एम्प्लॉयज हैं और मैं 10 एम्प्लॉयज को उस स्विच से कनेक्ट करता हूँ, तो जो भी उस नेटवर्क में मैं मैसेज भेजूंगा तो वो सबको जाता रहेगा बार बार। ये रिपीटर के केस में होता है क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, उसको जो मिला इनपुट किसी भी एक पोर्ट से वो सारे बाकी 9 पोर्ट में भेजता रहेगा। अब आप ये सोचो कि ये आपको रिक्वायरमेंट है इस चीज की कि आपने एक इंफॉर्मेशन भेजी, आपने फर्स्ट, सपोज 10 लोग हैं मेरे पोर्ट में कनेक्ट, उस स्विच से कनेक्टेड, मैंने फर्स्ट वाले ने मेरे से बात करनी फिफ्थ वाले से, तो फर्स्ट वाले ने जो बात करनी थी फिफ्थ से वो सबको जा रही है। तो ये क्या आपको एक रिक्वायर्ड, या ये मतलब एक नेटवर्क का जो डिजाइन है या नेटवर्क का जो यूज है वो सही वे में हो पा रहा है यहाँ पे? आप सोचिए, नहीं हो पाएगा ना। Yeah, और इट correct. और इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ वन ही बात कर रहा है 5 से, 6 को बात करनी है 7 से, 8 को बात करनी है 9 से, 9 को बात करनी है 1 से। तो होगा क्या, जब इंटेलिजेंस नहीं होगी डिवाइस के अंदर, तो जो 9 होगा उसकी इंफॉर्मेशन सबको जाती जा रही है, जो फर्स्ट ने कम्युनिकेट करना है फिफ्थ के साथ उसकी इंफॉर्मेशन सबको जा रही है, और ये सब एक साथ हो रहा है उस नेटवर्क में। सोचो, अब आप सोचो कि कितनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? Yeah, got it. No. सिर्फ इतना इमेजिन मत करो कि सिर्फ वन को 2 से बात करनी है या 3 को 5 से बात करनी है। यू इमेजिन वो जो 10 लोग हैं, एवरीबडी इज वांट टू टॉक टू एवरीबडी। तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नेटवर्क में जो फ्लो होगा, डेटा फ्लो, जो भी आप फ्लो, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो रहा है वो कितना अननेसेसरी इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, राइट? सो उसी इंटेलिजेंस को लाने के लिए, उसी इंटेलिजेंस को देखते हुए वो स्विच को यूज करा था, क्योंकि स्विच के पास इंटेलिजेंस होती है कि मुझे फर्स्ट ने जब बात करनी है फिफ्थ से, तो मुझे फर्स्ट की इंफॉर्मेशन को सिर्फ फिफ्थ को पास ऑन करना है, रादर देन पासिंग इट टू ऑल दी अदर पोर्ट्स। ये स्विच का काम है, ये इंटेलिजेंस है उसके अंदर। ब्रिज में भी वो इंटेलिजेंस है, बट ब्रिज में क्या ड्रॉबैक है मेरे पास, एक शॉर्ट कम क्या है कि उसमें 2 ही पोर्ट है, मैं सिर्फ 2 ही लोग कनेक्ट कर सकता हूँ, और एवरी टाइम मैं ब्रिज को अलग अलग खरीदने से बेटर है कि मैं एक स्विच खरीद लूँ मल्टीपल पोर्ट्स का। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर मी इन दैट केस, राइट? Yeah, correct. Got it. हाँ। तो वैसे देखेंगे तो ये राउटर राउटर जो होता है तो वो भी वाईफाई जनरेट ही करता है ना, मतलब लाइक रिपीटर itself it will also generate वाईफाई, तो उसमें इंटेलिजेंस बाय डिफॉल्ट होता है क्या, मतलब हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स? आई डेंट गेट यू, रिपीटर, आप रिपीटर की बात कर रहे हो, राउटर की बात कर रहे हो? हाँ, रिपीटर एंड राउटर. नो नो, अभी अभी आप राउटर को छोड़ दो, राउटर हमने डिस्कशन नहीं किया। रिपीटर तो जस्ट आपका या टू एक्सटेंड द सिग्नल. या आई गॉट इट. एक्सटेंड करता है, और अगर उस पर कनेक्टेड आपके डिवाइसेस हैं सपोज, तो वो सबको पास ऑन करेगा। दैट इज ऑल्सो नॉट इंटेलिजेंट डिवाइस ना, क्योंकि वो तो लेयर 1 पे काम कर रहा है, उसको जो मिला उसमें भेजता रहा आगे को। गॉट ठीक इट. है। नाउ कमिंग टू राउटर, राउटर क्या है, लेयर 3 पे काम करता है। अभी जब हमने इसे ओएसआई मॉडल पढ़ा नहीं है, मैं आपको सिर्फ अभी ब्रीफ ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, ये हम लोग प्रॉपरली इनको फिर से सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ओके। डन. राउटर विल और बी एल्स ऑन, यू कैन स्किप माय क्वेश्चन, सी आई मीन हाँ जो ओके, मतलब नो बाद में प्रॉब्लम। पढ़ेंगे तो वो ठीक है, कोई हाँ बात ठीक नहीं. है, मैं आपको फिर So वही it should बेसिक not be आइडिया। like I am disturbing everyone. मैं अकेला नहीं, तो मतलब I'm only the person who is asking a lot of questions. Others are getting disturbed. Should not be यस, that way. अदर्स आर आल्सो आर हैविंग, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो दे कैन आस्क फ्रीली, नो प्रॉब्लम। Yeah. और अगर किसी को लैंग्वेज का कुछ इश्यू है कि लाइक इंग्लिश और हिंदी पे जा रहा है, लाइक हिंदी पे जा रहे हैं, इंग्लिश पे चलना है, तो दे कैन ऑल्सो टेल मी। ओके। सो नाउ राउटर, राउटर क्या होता है कि हमारा लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 इज लाइक, ये आईपी एड्रेस को समझता है। जैसे इससे पहले हमने बात करी कि स्विचेस और ब्रिज जो थे वो हमारे मैक एड्रेस को समझते हैं। मैक एड्रेस वो एड्रेस था जो आपके लैपटॉप के इथरनेट जो एनआईसी कार्ड होता है, उस कार्ड में इनबिल्ट होता है, जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा हम मान के चलते हैं।
तो देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, बट आप मान के चलो मैक एड्रेस आपकी डिवाइस की आइडेंटिटी है जो कोई नहीं बदल सकता है। इट कैन बी योर मोबाइल फोन, उसमें भी मैक एड्रेस होता है, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, जो भी डिवाइस आपके कम्युनिकेट कर रहे हैं सब में मैक एड्रेस होता है। वो फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो लेयर 2 का एक आइडेंटिटी है। लेयर 3 में जब हम बात करते हैं तो एक आईपी एड्रेस कहा जाता है, इसको हम एक लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। इसको लॉजिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फिक्स आइडेंटिटी नहीं है। हो सकता है कि आपका मोबाइल फोन आज अभी इस सेशन को कनेक्ट करने के लिए आपने मोबाइल से कनेक्ट किया होगा या लैपटॉप से कनेक्ट किया होगा। यू कैन वेरीफाई योर आईपी एड्रेस। वो आज एक आईपी आपको अलॉट हुई होगी, कंफर्म है कि वो कल आपको दूसरी आईपी अलॉट हो सकती है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लॉजिकल एड्रेस। बट सेम टाइम साइमल्टेनियसली अगर आप अपने मैक एड्रेस को जब देखेंगे तो मैक एड्रेस विल रिमेन ऑलवेज बी सेम। आज यूज करो, चाहे आप एक महीने के बाद यूज करोगे, चाहे एक साल के बाद यूज करोगे, मैक एड्रेस विल नेवर चेंज फॉर योर लैपटॉप और योर डिवाइस जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हो। तो राउटर जो वर्क करता है वो लेयर 3 पे वर्क करता है, जिसमें हम लोग आईपी एड्रेस डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिकल एड्रेस। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे अपने लैपटॉप्स पे 10.10.10.10 192 168 दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच आपने जो सुनी होंगी, दीज आर कॉल्ड आईपी एड्रेसेस। एक्सेस पॉइंट्स क्या होते हैं? आपने वाईफाई हॉटस्पॉट देखे होंगे, लाइक किसी मॉल्स में देखा होगा, वाईफाई आप कनेक्ट कर पाते हो, एयरपोर्ट्स पे आप वाईफाई कनेक्ट कर पाते हो। सो दीज आर ऑल वायरलेस डिवाइसेस होते हैं जो हमारे किसी पॉइंट पे रखे होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं किसी सेटअप में। इट कैन बी योर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म हो सकता है, मॉल्स हो सकते हैं, आपका सिनेमा हॉल हो सकता है, या और भी लाइक वेरियस यूजेस कहीं पे भी हो सकते। कंपनी के आप कैंपस में देख सकते हो अपने कि वहाँ पे आपके एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं, आप फ्री वाईफाई एक्सेस कर सकते हो। तो दीज आर कॉल्ड एक्सेस पॉइंट्स। वो आपको जस्ट लाइक आपके घर पे जो वाईफाई है, आपका वाईफाई जो मॉडेम आप जिसको बोलते हो, सेम कंसेप्ट होता है, बट इट विल हैव अ लाइक मोर रेंज। आपके घर के वाईफाई की रेंज हो सकता है कि एक बगल वाली बिल्डिंग में आ सकती है, बट जो ये एक्सेस पॉइंट्स होते हैं इनकी किलोमीटर्स की रेंज होती है। इट विल बी समवेयर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ऐसी रेंजेस वाले भी एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू पीओई स्विचेस। पीओई स्विचेस आर लाइक सेम, आपका जो स्विचेस हमने पढ़े थे वैसे ही स्विचेस होते हैं, बट इसमें एक एडिशनल फीचर होता है कि आप अपने उस स्विच से जिस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो उसको वो पावर सप्लाई कर सकता है स्विच आपका। नो नीड टू पुट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एंड डिवाइस जो आप स्विच से कनेक्ट कर रहे हो। किसी केस में हो सकता है, सपोज लाइक एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट अगर आप रेलवे स्टेशन में किसी हाइट पे अगर इंस्टॉल करते हैं या किसी मॉल्स में इंस्टॉल करते हैं, तो आपके लिए फिजिबल नहीं होगा कि आप वहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई अपने उस एक्सेस पॉइंट को या अपने वाईफाई के डिवाइस को दे पाओ। तो उस केसेस में ये पीओई स्विचेस जो होते हैं वही पावर सप्लाई कर देते हैं आपके एक्सेस पॉइंट्स को। तो दे डोंट नीड एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई इन केस ऑफ पीओई स्विचेस। So compared to a normal switch, these PoE switches will be little bit costlier. Okay, सर्वर्स आपके जो ऑफिस के जो सेटअप्स जो भी होंगे वहाँ पे आपके सर्वर्स इंस्टॉल होंगे जिसमें आपका डेटा, कुछ भी आपकी वेबसाइट होस्ट हो सकती है, आपके एप्लीकेशंस होस्ट हो सकती है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी बेस्ड इन दी सर्वर्स एंड इंस्टॉल्ड इन दी सर्वर्स। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि लाइक हमारे ट्रांसमिशन मीडिया कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि लाइक कनेक्टिविटी कैसे आकाश, होगी। वन क्वेरी, सॉरी, हाँ, ये जो आईपी आईपी बोल रहे थे आप लॉजिकल करके, फॉर एग्जांपल अगर डायनामिक हो तो मतलब आई कैन अंडरस्टैंड द आईपी माइट गेट चेंज। तो अगर वो स्टैटिक होगा तो मतलब दो यू आई मीन इवन इवन फॉर 6 मंथ्स लेट्स से, वो फॉर 1 ईयर, तो वो सेम ही रहेगा ना अगर मैं स्टैटिक रखूँ तो? आप स्टैटिक मतलब कैसे, आप अपने सिस्टम पे स्टैटिक आईपी रख रहे हो, राइट? आप कहना करेक्ट। क्या चाह रहे हो कि आप हाँ, जो अपने लैपटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसको स्टैटिक आईपी कह रहे हो, राइट? करेक्ट करेक्ट। दैट इज अ प्राइवेट आईपी। इसमें आईपीज में भी अगेन प्राइवेट आईपीज एंड पब्लिक आईपीज होती है। अगर आपने कोई इंटरनेट कनेक्शन लिया है, सपोज यू आर यूजिंग एनी इंटरनेट, तो जो आपको जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईएसपी है, चाहे इट कैन बी जियो,
कुछ भी मतलब जिसका भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उस सर्विस प्रोवाइडर की जो आईपी होगी वो आईपी आपकी चेंज होती रहेगी, अगर वो डायनामिक है तो पब्लिक आईपी। आप अपनी आईपी जो यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में, दैट कैन बी फिक्स्ड डिपेंड ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने कैसे आपने स्टैटिकली अपने लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करी है आईपी, तो इट विल नेवर चेंज। बट इफ इट इज अ बट सेम टाइम जो आपको आईएसपी आईपी देता है, जो सर्विस प्रोवाइडर आपको दे रहा है आईपी, वो डायनामिक आईपी होगी, वो चेंज होती जाती है, उसको नोटिस करना आप। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लॉजिकल एड्रेस। करेक्ट, बट व्हेन यू टेक दिस कॉर्पोरेट लाइन, राइट, तो ये जो क्या बोलते हो, ब्रॉडबैंड जब लेते हो तो दैट आईपी कीप्स चेंजिंग बिकॉज दैट्स अ डायनामिक। तो जब राइट। भी ये लीज लाइन होता है तो उसमें तो स्टैटिक ही रहता है ना, मतलब दैट विल नेवर चेंज until unless we request कि चेंज करो करके। आप इंटरनेट लीज लाइन की बात कर रहे हो, राइट? करेक्ट करेक्ट। हाँ, बट मैं वही, आप ये समझो कि जो इंटरनेट लीज लाइन में आपने जो आईपी यूज करी है, इफ इट इज अ प्राइवेट आईपी, ओके, फर्स्ट थिंग इज इफ इट इज अ प्राइवेट आईपी, वो आईपी एनीबडी कैन यूज इन द ग्लोब इफ इट इज अ प्राइवेट आईपी। आप उसको अगर इंडिया में यूज कर रहे हो किसी एक लोकेशन पे, आई कैन ऑल्सो यूज द सेम आईपी इन माई नेटवर्क इन माई होम एज अ प्राइवेट आईपी। तो लॉजिकल हो गई ना वो, तो आइडेंटिटी ग्लोबली यूनिक नहीं होगी, आपका मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक है। इंडिया में क्या, ग्लोब में, इस पृथ्वी अर्थ के अंदर कहीं पे करेक्ट भी करेक्ट चलेगा। करेक्ट, दैट्स दैट्स राइट। व्हाई इट इज कॉल्ड अ फिजिकल एड्रेस। ओके। इसीलिए मैं आईपी एड्रेस को लॉजिकल बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो प्राइवेट आईपी है, इवन दो इट इज आईएलएल कनेक्शन, आप अगर उसको यूज कर रहे हो तो सेम आईपी एनीबडी एल्स आल्सो कैन यूज, आई उसमें कोई गॉट डाउट नहीं है। ओके। गॉट इफ इट। इट इज अ पब्लिक बट आईपी। वन मोर क्वेरी आई आई हैव हियर। तो अभी आपने बोल रहे थे कि मतलब तो इफ आई एम यूजिंग एनी आईपी, even you can use that IP from anywhere, right? So that can be considered as public IP, right? So नो, is it private IP or प्राइवेट आईपी, public इट इज अ IP? प्राइवेट आईपी। इफ आई एम एबल टू यूज द सेम आईपी जो आप यूज कर रहे हो, देन इट इज श्योरली अ प्राइवेट आईपी। अगर पब्लिक आईपी है, वो ग्लोबल यूनिक है, उसे कोई यूज नहीं कर सकता। इफ इट इज अ पब्लिक आईपी, कोई, इट कैन नॉट बी रिपीटेड एनीवेयर, वो कहीं रिपीट नहीं होगी। ठीक है, या फिर उसको बाय आप गॉट। एक तरह से मतलब ये समझ सकते हो कि हाँ, वो मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी बन गई है, वो आप नवीन की ही यूनिक आइडेंटिटी है, नो बडी कैन चेंज इट नाउ इफ इट इज अ पब्लिक आईपी। ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अवर ट्रांसमिशन मीडिया पार्ट, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी लेयर वन की जो फिजिकल कनेक्टिविटीज है, हाउ इट गोज। वी हैव लाइक, जैसे हम लोग अपने घर पे वाईफाई यूज करते हैं, दैट इज अ वायरलेस मीडिया। तो एक वायरलेस कनेक्टिविटी है बिटवीन योर राउटर, योर मॉडेम एंड योर डिवाइस। इट कैन बी फोन, टीवी, लैपटॉप, एक वायरलेस मीडिया ये हो गया। प्रीवियसली वी यूज टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन फोन टू अदर फोन यूजिंग ब्लूटूथ। और किसी सैमसंग में आपने देखा होगा कि एनएफसी का एक नियर फील्ड वो होता है, एक ऑप्शन होता है, एक फैसिलिटी होती है जिसको हम सैमसंग में यूज करते हैं, एनएफसी करके। दैट इज अ दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ योर वायरलेस मीडिया, कि वायरलेस मीडिया में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। आप अपने मोबाइल फोन पे कुछ, सपोज यूट्यूब खोलना चाहते हो, हाउ दैट यूट्यूब, योर रिक्वेस्ट इज गोइंग वाया आपके फोन से, वो कैसे मॉडेम में जा रही है या आपके राउटर पे जा रही है, राउटर से वो कैसे आपको कंटेंट वापस मिल रहा है, राइट? तो ये वायरलेस मीडिया कनेक्टिविटी है। अदर वे व्हाट इट कैन बी योर लैन केबल। आपने अपने लैपटॉप को अपने मॉडेम से लैन केबल से कनेक्ट कर दिया, उस वे में भी आप, यू कैन यूज द इंटरनेट सर्विस और लाइक एनी अदर सर्विस। ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज कोएक्शियल केबल, जो हम लोग पहले केबल टीवी ऑपरेटर्स देखते थे, उसमें एक केबल होती थी, कॉपर केबल आती थी। दैट इज ऑल्सो ट्रांसमिशन मीडिया विच अभी उतना यूज नहीं होता है। पुराने आप जो आपके टावर्स होते हैं, सिग्नल जो मोबाइल सिग्नल के जो टावर्स हैं, वहां पे भी ये केबल्स यूज होती थी पहले, कोएक्शियल। अब ऑलमोस्ट सारी केबल्स इलेक्ट्रिकल होंगी, आपकी जो इथरनेट केबल्स हैं या फिर आपके ओएफसी केबल्स कनेक्टेड होती हैं। तो मेजरली जो आज के दिन जो मीडिया यूज होता है प्रेजेंट सिनेरियो में, आप देखेंगे, एक तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए हमारी ट्विस्ट, ये आपकी इथरनेट केबल्स यूज होती हैं, कैट 5, कैट 6, कैट 5 बी, या आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज हुई होंगी कनेक्टिविटी के लिए, या आपका वायरलेस मीडिया रहेगा। वायरलेस मीडिया यूजुअली आप देखोगे तो लोकल, आपके जो लोकल कनेक्टिविटी आपको यूज करनी है तो वहीं पर यूज होता है। एक ब्रॉड
आप एक नेटवर्क में, बड़े नेटवर्क में देखोगे तो वायरलेस मीडिया यूज नहीं होता है। वहाँ सिर्फ OFC और आपका इलेक्ट्रिकल केबलिंग ही यूज होती है, जिसको आप इथरनेट केबल्स बोलते हो। ठीक है। सो इसमें नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी। सो बिफोर दैट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं, वेदर दे आर एक्टिव और सिंपली ये ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पे। एज आई कैन सी ऋतिक, अभिनव शर्मा, सिर्फ क्योंकि नवीन ही मैं देख रहा हूँ कि ही इज मोर इनटू दिस। मैं कुछ भी डाउट? वही सोच रहा हूँ, मतलब मैं अकेला ही हूँ क्या, मतलब जो सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। यस, आई कैन सी प्रशांत, गुलशन ऑल्सो। सो वेदर No, sir, we are actively seeking also into the class. We just waiting for the lecture one to start so that we can ask for the actual things. सो अभी ये जो भी चल रहा है सेशन में, सो आई मैं मतलब ये सोच सकता हूँ कि आपको ये सब पता है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट इनटू इट, राइट? नहीं, ऐसा नहीं कि पता है सर, बस इतना है कि बेसिक नॉलेज है। आपने जो पहला जो सबसे पहले चार्ट दिखाया था ना, जो टॉपिक्स थे, तो हम हाँ, टॉपिक्स का वेट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब पर होप ये है कि जो अभी तक बताया गया वो आपको क्लियर है, राइट? आई कैन हाँ टेक। हाँ, और बाकी कुछ डाउट होगा तो लाइक जब फर्दर आप डिटेल्स में बताएंगे उनका बार बार जब जिक्र जब होगा तब जैसे क्वेश्चन रहेंगे। अभी कुछ ऐसे ऐसा क्वेश्चन है नहीं क्योंकि पढ़ा नहीं है। राइट। नहीं मतलब आपने पहले ये चीजें पढ़ी हैं, सुनी हैं। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, तो ठीक है। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो ओके, यू कैन गो अहेड, यू जी कैन आस्क मी, ओके। जी। तो मैं देख रहा हूँ कि नवीन ही कंप्लीटली इंटरेक्टिव है पूरा इस सेशन पे। ओके, एनीवेज नो प्रॉब्लम, मे बी। ओके। सो अभी हम टोपोलॉजीज बात कर लेते हैं कि हमारे जो नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, उसमें कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास एक रिंग टोपोलॉजी है, अगर इस डायग्राम को देखें। एक स्टार टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, मैश है और बस है। अब इस डायग्राम से अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या समझ में आ रहा है आपको इस डायग्राम से, ये क्या होगा, या कोई प्रैक्टिकली इसको कोई रिलेट कर पा रहा है? एनीवन अमंग द पार्टिसिपेंट्स? क्या मे बी फॉर एग्जांपल ये जो रिंग रिंग नेटवर्क जो है, रिंग टोपोलॉजी जो है, तो हम्म। अगर चार सिस्टम कनेक्टेड है एक 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 लाइन में, तो अगर एक डाउन हो गया तो मतलब बाकी तीनों तीनों भी डाउन हो जाएंगे। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो एक लेमैन एज अ नेटवर्क इंजीनियर अगर आप मुझे बताना चाहो नेट क्या कनेक्टेड है, ये चार पहले तो बताओ मुझे। फिर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं पूछूं कि ये में क्या ये कनेक्टेड है, एक क्लाइंट हो गया, तो क्लाइंट ये मशीन चार से क्लाइंट। नेटवर्क हो गया। हाँ, तो आपके क्लाइंट में आपके पास दो लैन केबल कनेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, लाइक मतलब एक लैन केबल एक NIC कार्ड से दूसरे NIC कार्ड से, आपने देखा है कभी ऐसा कि आपने यस दो डेफिनेटली यस, वी कैन हाँ, कनेक्ट इट। हाँ वी कैन कनेक्ट इट। बट यूजुअली वी विल नॉट कनेक्ट, राइट? हम लोग एंड डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करते हैं ऐसे रिंग में, जहां तक मैं समझ पाता हूँ। एंड डिवाइसेस विल नेवर कनेक्ट इन योर रिंग। आपके जो ओके। स्विचेस होंगे या आपके हब होगा या राउटर्स होंगे, दोज विल बी कनेक्टेड, एंड डिवाइसेस विल नेवर करेक्ट। कनेक्ट इन दैट रिंग। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आप ये मत समझना ओके कि आपके ओके लैपटॉप रिंग में कनेक्टेड है। ओके ओके। एज अ नेटवर्क, एज अ ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचें कि आपके स्विचेस है, सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने चार स्विच रखे हुए हैं, उसमें आपने चार स्विचेस को हम्म। रिंग में एक रिडंडेंसी बना रखी है। इस स्विच से इसको आप PC ना समझ के स्विच समझे, और स्विच से आपने कनेक्शन दे रखे हैं अपने सारे। तो दैट इज अ रिंग टोपोलॉजी। उसका एडवांटेज क्या है, आपने जो सही बोला, अगर एक पॉइंट से कट जाता है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो अदर साइड से इट कैन बी डन। ओके, मूविंग ऑन टू स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि एक सेंट्रलाइज एक स्विच है, एक स्विच से आपने एंड यूजर्स कनेक्ट किए हैं। तो इसमें क्या है, आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ये इस मीडिया पे कुछ हुआ, अगर इस स्विच से जो कनेक्टेड जो आपका एंड डिवाइस है, जो आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या कोई सर्वर है, अगर वो डाउन हुआ तो इट विल इम्पैक्ट ओनली टू दैट पर्टिकुलर कनेक्शन ओनली, नॉट टू द अदर कनेक्शन, राइट? आपके अदर कनेक्शन इंटैक्ट रहेंगे एंड दे कैन इजिली यूज द सर्विसेज इन केस ऑफ स्टार नेटवर्क। ये आपका ट्री नेटवर्क है, इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्टार नेटवर्क ओनली। आप हमें समझ पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका ये डिवाइस इटसेल्फ गोज आउट, सपोज कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये फॉल्टी हो गया, तो देन योर होल नेटवर्क विल कोलैप्स। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने मैश में यूज करते हैं कि आप एक स्विच के बदले दो तीन स्विचेस यूज करें और रिडंडेंसी बना लें, कि अगर आपका एक स्विच इम्पैक्ट हुआ तो योर बिजनेस शुड नॉट गेट इम्पैक्टेड। आपका जो एक स्विच होगा वो दूसरे स्विच से कनेक्टेड होगा। तो समवेयर
एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द सर्विसेज। आपका नेटवर्क कभी कोलैप्स नहीं होगा, जिसको मैश बोलते हैं। बट होता क्या है कि ये मैश नेटवर्क बनाना कॉस्टली पड़ जाता है। एज अ कैपिटल आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपको हर डिवाइस को हर डिवाइस से कनेक्टेड करना है, उतनी केबलिंग करनी है, तो इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू, किसी के लिए भी। देन अगेन इट डिपेंड्स कि आपका बिजनेस कैसा है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इफ़ यू आर एन आईएसपी, पॉसिबिलिटी है कि आप अपने हर डिवाइस को एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और रिडंडेंसी बनाने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड अ मेश नेटवर्क। हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड रहेगा। देन दिस इज अ बेसिक इनिशियल लेवल बस नेटवर्क। एक ही केबल से आपके सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे। अगर इसमें कहीं पे भी इस लिंक को कुछ डैमेज होता है तो ऑल विल गेट कोलैप्स, कहीं इंफॉर्मेशन पास नहीं होगी। तो दिस इज, अब प्रैक्टिकली जो होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हर जगह ये कोई भी आर्किटेक्चर जो बनेगा वो सबका मिक्सचर होकर ही बनता है। ऐसा नहीं होता कि कोई रिंग टोपोलॉजी ही बनी होगी सिर्फ, या कहीं पे स्टार ही बना होगा पूरा नेटवर्क। नो, इट विल ऑलवेज बी अ मिक्सचर ऑफ फुल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजीज। हम इसको बस स्प्लिट करके इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, सो आई होप दिस इज। आकाश, ये रिंग टोपोलॉजी का जो सीन है, तो कैन यू गिव मी एग्जांपल व्हेन ये जो रिंग नेटवर्क यूज होता है? ओके, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसको हम डीप में बाद में पढ़ेंगे। No, if it is repeated later, तो I'm okay. सी दिस इज अ रिंग, यू कैन कॉल इट अ Okay. रिंग, राइट? हाँ, करेक्ट, ये मेरे करेक्ट, तीन तीन स्विचेस हैं, करेक्ट। ये मेरे यूजर्स कनेक्टेड हैं, तो दिस इज अ रिंग टोपोलॉजी। मैं अपने नेटवर्क को मैंने इतना स्ट्रांग बनाया है कि मैं तीन स्विचेस यूज कर रहा हूँ। अगर मेरे ओके, को यूजर टू को कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है यूजर वन से, if this ओके, link goes down for me, switch 2 to switch 1, I can pass my information via switch 2 to switch 3 to switch 1. ओके, This is a ring topology for me. If ओके, I got one it. user one want to pass any information to user 3, if this link goes down due to any of the reason can be हम्म, so many reasons. Okay, ये physical जो connectivity है ये आपकी faulty हो जाएगी, केबल रप्चर हो जाएगा, ये पोर्ट फॉल्टी हो ओके, सकता है जहाँ पे ये पोर्ट है कनेक्टेड होगा फिजिकल मीडिया। देन माय ओके, यूजर वन कैन गो टू यूजर थ्री वाया यूजर टू, एंड this way user switch to switch 3. So this is called your this okay, topology, yeah, ring topology. yeah. Okay, But hops will be more, right, in that scenario? come again. ये अगर ये स्विच 1 टू स्विच 3 डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये डाउन हो गया, तो स्विच 1 2 3 से जा रहे हैं, तो मतलब हॉप्स ज्यादा होगा। जो स्विच की जो रिडंडेंसी बनती है, स्विच का जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है, इट विल बी इन सेम सेम प्रमाइस यूजुअली। ये ऐसा नहीं होगा कि ये आपका एक स्विच वन आपका अगर एक दिल्ली में रखा है तो दूसरा स्विच कहीं और रखा होगा। इट विल नेवर बी लाइक दैट। इट विल बी इन ओके, सेम बिल्डिंग, एक ही अगल बगल में रखे होंगे। ओके, ओके, तो ओके, ओके, उसमें वो ओके, हॉप की जो लेटेंसी या जो भी आप सोच रहे हो कि ओके, डिले हो जाएगा, वो गॉट इट। दैट विल नॉट कम टू पिक्चर। ओके, या अंडरस्टूड। हाँ, ये चीज है। सो आई होप आई कैन क्लोज दिस सेशन फॉर टुडे if it is okay for all the participants. Yeah, Akash, like it was a great session, हाँ, and Yeah, it is very much interesting. You can even continue. I'm okay with it. actually, it's a 1 hour session today. आज 1 घंटे का रहेगा, and we'll start the batch within next week. Okay, next week से regular होगा, और इसकी एक next day one class होगी हमारी, जो कि around 12th of March को होगी, same time. Okay, so be there and hope for the best. Thank you everyone. Thanks No, Akash. but Thanks one everyone. one Thanks query for having. here. One query. ये कल कल क्लासेस नहीं रहेगा? नहीं, जो हमारा आकाश के साथ बैच है स्किल्स फॉर एवरीवन का, वो अभी एक आज डेमो सेशन था, उसके बाद 12th को होगा। नेक्स्ट वीक से हम रेगुलर करेंगे इसको। Next week in the sense like when exactly? So if you can please let me know. 17th of March। 17th of March से रेगुलर होगा डे 1। जी जी। ओके, ओके। तो कल नहीं रहेगा, सो इट्स नहीं डायरेक्टली कल ऑन नहीं, 12। कल नहीं, कल नहीं। So should we join on 12th again or it's directly ये 17th? यू कैन ज्वाइन, लाइक इट विल बी अ डे वन, हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद रेगुलर हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। तो 12 के बाद डायरेक्टली 17th है ना? जी जी जी। डन, डन, डन। I didn't get your name by the way. एक्चुअली आई एम उत्कर्ष, आई एम द ट्रेनिंग मैनेजर, एंड Okay, आकाश हमारे ट्रेनर हैं। okay,
ग्रेट, थैंक यू ओके, सो मच गाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। या गुड थैंक यू, नाइट, बाय। बाय बाय।